Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. This is me Medicophilic, and since I posted this video, I've been getting a lot of comments for so many subjects obviously. So guys, I am trying to cover each subject one by one, and English literature की already I have put a video on my channel जो जिसका link description में है, you can check that out. And guys, trust me, bio is not that tough. Scoring 95 plus in bio in ICSE class 10 is really very easy, and if you stay with me till the end of this video, it will be even more easier. I bet you won't regret watching this video. So yes, without any further ado, let's get into today's video. So guys, the first and the most important tip is practicing diagrams. Yes, you heard me right. This is one of the most important tips I must say, because diagram based questions भी आ सकते हैं, diagram draw करने को भी आ सकता है. So you have so many probabilities कि एक diagram से कैसे कैसे type के questions पूछ सकते हैं. And you know, यहाँ पे हमारे syllabus में for class 10 bio there are certain diagrams which are the examiner's favorite, जो वो लोग मतलब ज़्यादातर time repeat करके ही दे देते हैं. So there is one diagram जो eye के बारे में है. There is one diagram for the heart. There is a diagram Genong's पोटोमीटर का. सो मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट वाला भी. सो देर आर सो मेनी डायग्राम्स. आई नो द डायग्राम्स आर नॉट लेस. फोटोसिंथेसिस और जो प्लांट फिजियोलॉजी वाले चैप्टर वहाँ पे तो थोड़े से ज़्यादा ही हो जाते हैं अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट्स के सेटअप्स का डायग्राम भी काउंट करें तो. बट स्टिल सारे डायग्राम्स ईजी हैं, एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड वंस द लॉजिक बिहाइंड दिस, वाई वी आर कंडक्टिंग दिस एक्सपेरिमेंट, ये ड्रॉ करके इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, सो दैट गेट्स ईजियर. एंड हार्ट वाला डायग्राम तो आई यू नो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो येस गाइज, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू चेक आउट द PYQs also, there are so many questions जो diagram based होते हैं, and there are so many questions where they ask you to draw it. So yes, it is very important to learn how to draw that thing. So yes, pay more and more attention on focusing on the diagrams. So guys, as per tip number 2, you should spend more and more time in reading your textbook. Yes, notes पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है. This is what I feel and this is what I did. I don't know about your personal opinions, but seriously हम बहुत ज़्यादा notes पर focus नहीं करते थे. Yes, I made notes, but just for some chapters, especially plant physiology वाले सारे chapters के मेरे पास notes थे जो हम खुद से बनाए थे. But still मेरे पास सारे chapters के hand written notes नहीं थे, and उसके बाद भी हमको कोई problem नहीं हुई, कभी नहीं हुई. Textbook read करना मेरा हमेशा से prime focus रहता था, and textbook read करना is the most important thing also, because वहाँ पे diagrams भी हैं, वहाँ पे points to remember, keywords और जितने भी important चीज़ें हैं सारी की सारी आपके टेक्स्ट बुक में. यू कैन नॉट कंपाइल एवरीथिंग इनटू योर नोट्स. नोट्स नीड टू बी स्पेसिफिक, प्रेसाइज एंड शॉर्ट. ओके, सो टेक्स्ट बुक रीड करने पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए हमारा. आई होप दैट यू गॉट इट. एंड टू सम अप, आई वुड से दिस अगेन, दैट इन बायो रीड द टेक्स्ट बुक एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल rather than note making or reading the notes. Moving to tip number 3. So this tip says that you should practice PYQs as many times as possible before your boards. Yes guys, this is a very important part of board exams. PYQ solve करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. Many people think कि PYQ solve करके क्या ही होगा, टेक्स्ट बुक से अच्छे से रीड कर देते हैं, हो जाएगा. Yes, हो तो जाएगा, but if you want to go to the perfection, if you want to score the maximum marks that you can, तो PYQs will play a very important role. I am telling this again. This book really helped me a lot, and here I have this book here to show you something. ये वाला जो आप डायग्राम देख रहे हो यहाँ पे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये दोनों चीज़ें हैं हमारे टेक्स्ट में आई के बारे में. सो यहाँ पे 2020 में, एक्चुअली 2022 में वो क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड. अगेन 2016 में भी सिमिलर क्वेश्चन, एंड अगेन 2012 में भी वी गॉट द सेम क्वेश्चन. सो यू सी कि 10 सालों में ही ये लोग वही सेम टाइप का क्वेश्चन उसको 3-4 बार रिपीट कर देते हैं. सो इफ़ यू सॉल्व PYQs यू विल गेट द क्लैरिटी कि विच इज़ देयर मोस्ट फेवरेट टॉपिक, विच इज़ देयर द थिंग दैट इज़ मोस्ट लाइकली टू कम इन द एग्जाम, और उसको आप अच्छे से सेपरेटली उसको और टाइम निकाल के उसको और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो. बिकॉज जो ये वाले डायग्राम्स हैं आई वाले, दे ऑफन मेक पीपल कन्फ्यूज कि रेटिना के पहले क्रॉस करना है कि उसके बाद में क्रॉस करना है. ओके, सो थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल जितना हमको लगता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जब सारे चैप्टर्स एक साथ मग्ड अप फॉर्म में दिए रहते हैं, समवेयर वी गेट कंफ्यूज. सो PYQs विल हेल्प यू, एंड दे विल रियली रियली हेल्प यू. आई एम नॉट सेइंग कि यही बुक लो, बट दिस बुक आई हैव यूज्ड, तो हमको इसके बारे में पता है. दिस हैज़ हेल्प मी, एंड आई वुड सजेस्ट इफ़ यू वांट टू स्कोर वेल इन बायो एंड इन अदर 9 सब्जेक्ट्स एज वेल, देन यू कैन चेक दिस बुक ऑल्सो. डिस्क्रिप्शन में लिंक है. सो येस, दैट वॉज इट फॉर दिस टिप. मूविंग टू टिप नंबर 4.
The fifth tip is about a whole complete chapter, that is evolution. So my batch was a bit lucky, I guess, because this was not a part of our syllabus. But trust me guys, this is not at all tough. Easy chapter है, short है, precise है, उतना भी tough नहीं है. कुछ ही चीज़ें हैं जिस पे ज़्यादा ध्यान देना है. And if you are still feeling कि अभी evolution से कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, is this tough, या अगर आपको अभी भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, so you can check out this video. It is not at all sponsored, but still I am recommending this because I have seen Ambika ma'am's lectures back in class 10th and she teaches extremely nicely. So you can check out this video. उसका theory पढ़ो जो chapter में दिया है, read the text, solve the exercises, and yes, that is pretty much about evolution. इतना headache नहीं लेना है because I see people coming and texting me कि दीदी आपकी बैच का तो अच्छा था, हमारे साथ ऐसा हो रहा है. ऐसा नहीं है भाई, छोटा ही चैप्टर है, इतने ज़्यादा भी क्वेश्चंस उसमें से नहीं आएंगे because it is just one chapter. ऐसा नहीं है पूरा पेपर उसी से आ जाएगा. So you do that like the rest of the chapters. Yes, उसके PYQs नहीं होंगे, but still उसका इतना headache नहीं लेना, इतना टेंशन नहीं लेना है, हो जाएगा. ये वाली वीडियो देख लेना. This tip is all about presentation. So not just bio, not just English, not just computer, in every single subject your presentation really matters. वो examiner पर एक impression create करता है. Suppose you have 2 papers, एक में बहुत अच्छे handwriting में सब कुछ लिखा है, एक में ऐसे mugged up चीज़ें लिखी हैं कुछ भी कहीं भी, तो you would like to read this paper, not this, because eyes पे impression अच्छा गया है उसका. You would like to turn the pages and see what is written on it actually में. So अगर आपके पास time हो examination hall में paper match करने के बाद भी, revision करने के बाद भी, then you can underline the important points, all the important keywords, and you can लीव द स्पेस. और जो स्पेस जो हम 2 क्वेश्चन के बीच में जो लाइंस छोड़ते हैं, यू कैन अंडरलाइन देयर ऑल्सो. हम यहाँ पे सारी चीज़ें लेयर कर देंगे कि हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं. सो प्रेजेंटेशन रियली मैटर्स. अगर आप कोई डायग्राम बना रहे हो, इट शुड बी नीट, इट शुड बी क्लीन, इट शुड बी वेल लेबल्ड. एंड वन मोर थिंग, हमारे टीचर ने हमसे बोला था बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशली कि अगर आप कोई डायग्राम बना रहे हो, उसके सारे लेबल्स एक साइड में रखना. उस जो डायग्राम है उसका ऐसा मत करना कि इधर 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 हर जगह से एरो निकाल के उसमें लेबल्स कर दो. वैसे भी गलत नहीं है, बट स्टिल आई एम सेइंग दिस कि प्रेजेंटेशन रियली मैटर्स. इफ़ यू डू इट दिस वे, इट विल क्रिएट अ नाइस इंप्रेशन एंड देयर आर चांसेस कि आपको अच्छे मार्क्स मिले. वैसे भी मार्क्स मिलेंगे. आई एम नॉट सेइंग कि थोड़ा सा अगर गंदी हैंड राइटिंग हो तो मार्क्स नहीं मिलते हैं. मार्क्स सही आंसर पे ही मिलते हैं. बट वन थिंग इज़ प्रेजेंटेशन. आपको खुद भी सेटिस्फाइड फील होगा आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल. व्हेन यू हैव प्रेजेंटेड अ वेरी नाइस आंसर शीट, यू विल फील कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है, आई हैव डन द थिंग्स नाइसली. सो येस, टू सम अप, आई वुड से इन शॉर्ट कि प्रेजेंटेशन रियली मैटर्स. ट्राई टू प्रेजेंट योर पेपर्स द बेस्ट वे पॉसिबल. So guys, this tip says that you should highlight all the important points and keywords, and you should make use of sticky notes as these. So in your textbook you should have everything included, because I said कि textbook ही हमारा main focus होना चाहिए. Notes भी हैं okay, but still textbook is the main focus. जो board exam के पहले भी if you sit down 11 बजे हमारा पेपर होता था. So before every paper I used to feel कि एक बार एक quick revision सारे चैप्टर का होना चाहिए. तो एक quick revision के लिए you would not sit down to read every single line of that chapter obviously. तो उसके लिए you should know कि important points क्या हैं. Highlight the important things, underline the important things, और जो बहुत ही ज़्यादा important है, जो question फॉर्म में आ सकता है, राइट इट ऑन अ स्टिकी नोट एंड स्टिक इट देयर. सो यूज़ द बेस्ट वे ऑफ पर्सनलाइजिंग योर टेक्स्ट बुक. यूज़ इट वाइजली. अगर अभी भी आपके पास टाइम है, यू कैन डू थिंग्स नाइसर एंड बेटर. एग्जाम के एक दिन पहले पूरा मस्त रिविजन चाहिए एक बार के लिए. सो येस, यू ट्राई टू डू दैट इन मिनिमम टाइम पॉसिबल, ताकि आप बाकी चीज़ों को भी टाइम दे पाओ. बिकॉज सिर्फ टेक्स्ट बुक रीड करने से पूरा रिविजन तो नहीं हो जाएगा, राइट. यू हैव टू फोकस ऑन द डायग्राम्स अगेन, जो रीड करते टाइम हम लोग नहीं ध्यान देते हैं. यू हैव टू फोकस ऑन PYQs ऑल्सो. सो येस, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू एंड यू शुड लर्न टू मैनेज. एंड येस, सो गाइज, वाइल एडिटिंग दिस वीडियो आई रियलाइज कि हम एक चीज़ मिस कर दिए हैं जो हमको स्टार्टिंग में ही बता देना चाहिए था, बट नो वरीज, आई एम टेलिंग इट नाउ. डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसमें एक PDF है, सो यू कैन चेक दैट PDF आउट. उसमें मेरे खुद के नोट्स हैं, कुछ स्टिकी नोट्स, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते थे वो सब का आई हैव मेड अ कॉम्पाइलेशन. कुछ 60 समथिंग पेजेस की PDF है, सो यू कैन चेक दैट आउट एंड इट विल हेल्प यू. उसमें सारे चैप्टर्स के तो नोट्स नहीं, जैसे कि हम वीडियो में बताए, हम बहुत ज़्यादा नोट मेकिंग में बिलीव नहीं करते थे, बट स्टिल जिस चैप्टर्स का हमको लगता था कि जो टैबुलर फॉर्म्स में इनको लर्न करना ईजी रहता था, उनके मेरे पास नोट्स हैं. And that is in the description box, you can check that out. And yes, that was pretty much about today's video. Thank you so much for watching. मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then keep watching Medicophilic. और yes, सब्सक्राइब कर लेना भाई. many percentage हम बोल रहे हैं, majority of the people have not still subscribed to me. Let me reach 1000 soon. I have to make a Q&A video, Q&A टाइप का सेशन करना है. So yes, वो 1000 होने पे करेंगे. For the time being, I am terminating today's video. Thank you so much for watching. Bye bye.